ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ جلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور اس پیدائش پر ہمیں بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، ساتھ ہی ساتھ آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، فی زمانہ انسان بہت سے خفیہ عذاب میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف انسانیت پریشان ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈگریوں کے حامل سمجھتے ہیں، ان کا حل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانی پریشانی اور مشکلات کا حل صحیح طریقے سے حتمی طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ فی زمانہ جو بڑی بڑی آفتیں ہیں جس سے ہر مالدار اور غریب متاثر ہوتا چلا رہا ہے، ایک طرف بیماریوں کی کثرت ہے، ان گنت اور نئے نئے کثرت کے ساتھ بیماریوں کا پھیل جانا اور اس میں انسان مبتلا ہو کر رہنا، اور ان بیماریوں کی کوئی خاص وجہ بھی نہ ہونا۔ اس کے لیے الگ الگ ہم نے وجوہات اپنے طور پر بیان کر لیے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ بیماریاں ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ بیماریاں ہیں۔
اسی طرح سے ایک بہت بڑا سیلاب ہے مہنگائی کا۔ پچھلے دور میں کسی بھی چیز کی قیمت بہت جلدی نہیں بڑھتی تھی، اس دور میں ان چند سالوں کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور گمان سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں مہنگائی کا ایک سیلاب نہیں ہوتا تھا، بہت جلدی جلدی مہنگائی نہیں آتی تھی، ایک زمانے کے بعد کسی چیز میں مہنگائی آتی تھی۔ اب بہت جلد آئے دن ایک چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، دوسرے ہی دن اس کی قیمت گمان سے زیادہ حیرت انگیز طریقے سے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ دور بہت اچھا اور ٹیکنالوجی میں ترقی لے جانے والا دور سمجھا جاتا ہے، اور اس دور میں پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئلز اور ایجوکیشن کے حامل جتنے بھی ہیں یہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ پہلے پڑھے لکھے لوگ اتنے نہیں ہوتے تھے، آج پہلے پڑھے لکھے بہت زیادہ ہے۔ سکولز اور کالجز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، ڈگریز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ 10th بھی اگر کوئی پڑھا ہوا ہے، 31 سال پہلے بھی دیکھ لے تو 10th پڑھا ہوا کوئی مل جائے SSC والا، میٹرک والا، تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ آج ہر کوئی پڑھا ہوا ہے، مگر کسی بھی اتنے سال تک پڑھنے کے باوجود کہیں بھی اس کا علاج نہیں ملا کہ یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ اور مسلمان، اب اس کے علاوہ اور آگے دیکھیے، مسلمان تو دور کی بات، ہر عام انسان بھی اسے مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں پر قرضے کا وبال ہے، ہر 10 آدمی میں ایک آدمی قرض میں مبتلا آپ کو نظر آئے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سی زیادہ خودکشیاں اور سوسائڈ اٹیمپٹس ہو رہے ہیں۔ یہ سارے چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ قرآن کریم کے روشنی میں یہ ہے کہ انسان نے اپنے پروردگار سے جنگ مول لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر جب سود عام ہو جائے، انٹرسٹ عام ہو جائے، تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اندر سے اندر کھوکھلے ہو جاؤ گے اور غیبی عذاب اور بیماریاں تم پر مسلط ہو جائے گی۔ سود جو آج عام ہے، انٹرسٹ کا جو بازار ہے، یہ اس کی واحد وجہ ہے کہ بیماریوں کی کثرت ہے، جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر قرضدار زیادہ ہو جانا اور مہنگائی زیادہ بڑھ جانا۔ اب ہم حکومتوں پر کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں اس طرح سے ریٹ بڑھا رہی ہے، لیکن اس کی اصل صحیح وجہ ایمانداری کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ لینا اور اس سے کاروبار کرنے کا مزاج بن گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے۔ تھوڑا سا یہ تمام انٹرسٹ کا مسئلے کو ہٹا دیں گے، لوگ اس سے ہٹ کر کاروبار کرنا شروع کریں گے تو یقیناً مہنگائی ضرور بھی ضرور کم ہو سکتی ہے، ضرور بھی ضرور کم ہو سکتی ہے۔ اب یہ آفتیں کیوں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے، یہ جو سود ہے، اس سے بچو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ کتنا خطرناک جملہ ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اتنے سخت انداز سے آگاہ کر کے بتا رہا ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا یہ سود کا کاروبار کبھی نہیں کرتا، وہ کسی بھی طرح سے سود کا لین دین کسی بھی طرح سے اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں سود ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں، ایمان ہے تو سود نہیں۔ شرط لگا رہا ہے، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تو پھر تمہارے اندر کسی بھی طرح کا سودی معاملہ ہونا نہیں۔ اگر ہو جائے تو پھر تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کا میں کوئی تفسیر بھی عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف قرآن کا یہ ترجمہ ہے بس۔ تم اگر ایمان والے ہو تو اس سے انٹرسٹ سے دور رہو، بچو۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود لینے والا، دلانے والا، اس پر گواہ بننے والا، اور اس سود کے ایگریمنٹ کو لکھنے والا۔
और कुल्लुहुम सवाउन, ये सारे इस गुनाह में बराबर है। जितना गुनाह सूद के पैसे, इंटरेस्ट के पैसे लेने वाले को है, उतना ही गुनाह देने वाले को भी है, उतना ही गुनाह उसके एग्रीमेंट पे गवाह बनने वाले के लिए है, लिखने वाले के लिए भी है। अब आगे कुरान करीम मजीद हैरत अंगेज अंदाज से बता रहा है एक इस गुनाह पर जो अल्लाह तबारक व तआला जो अजाब मुकर्रर किया, सजा मुकर्रर किया, किसी गुनाह पर ऐसी सजा या ऐसा अजाब नहीं है। क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, जहां भी है जिना के लिए सख्त गुनाह है, किसी गुनाह को कमतर पेश करना हरगिज मकसूद नहीं है। जिना, चोरी, शराब, ये सब बड़े बड़े गुनाह है, इन पर बड़ी सख्त वईदें आई हुई है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर गुनाह के बारे में ये कहता कि तुम्हें आखिरत में ये अजाब होगा, जहन्नम का ये हिस्सा तुम्हारे साथ होगा, तुम ऐसे जलोगे, वो होगा, फुला होगा, ये सारे बताए। मगर ये जो सूद का कारोबार करने वाले और इंटरेस्ट पे पैसे लेने, जमाने, देने, दिलवाने वाले जितने भी है, इनके लिए कुरान फैसला दे रहा है, अगर तुम इस काम से बाज नहीं आओगे, पीछे नहीं हटोगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें जंग का ऐलान करते हैं, या तो सूद छोड़ दो या अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कौन अल्लाह से जंग करेगा? अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? और अल्लाह ने सिर्फ अपना नाम नहीं लिया, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह से और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब अल्लाह उसके रसूल से जंग का मतलब क्या है? क्या अल्लाह ताला तीर तलवार लेकर आएगा? क्या कोई नए तरीके का वेपन लेकर आएगा? ये अल्लाह तबारक व तआला के जंग के तरीके नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से तुम्हारे सामने कोई जंग के लिए आ जाए तो तुम हर तरफ से घिर जाते हो। अब वो परवरदिगार जो अरहमुर राहिमीन है, जिसकी रात रहमान और रहीम है, जिसके रहमतों की हद नहीं, जिसके शफकतों की हद नहीं, जिसके मेहरबानियों की हद नहीं, ऐसा परवरदिगार कह रहा है कि अब मैं तुमसे रहम का मामला नहीं, करम का मामला नहीं, बल्कि अब मैं तुम्हारे साथ जंग का मामला करने के लिए आया हूं। अब इस पर गौर करिए, कितना बड़ा मसला हो गया, ये कितना खतरनाक इश्यू है। अब हम तो ये नहीं कहते कि भाई हम तो इंटरेस्ट पे पैसे घुमा रहे, ये तो नहीं हो रहा है, मगर हो यह रहा है कि हर शख्स किसी न किसी तरीके से बैंक से जो रुजू हो रहे हैं वो इंटरेस्ट के तौर पर ही रुजू हो रहे हैं। अब उसको कोई गुनाह भी नहीं समझ रहे। ये अजीब तमाशे की बात है। इंसान को जहालत और लाइल्मी, नादानी जितना लेकर डूबती है, इससे बढ़कर उसका नुकसान और खसारा किसी में नहीं है। जितना बैंक से कितने लोग हैं, तकरीबन 10 में से 3-4 पर तो बैंक के लोन का इल्जाम रहेगा। कुछ भी कारोबार करना है तो बैंक से रुजू हो गए और वहां से ले लिए। और ये बैंकिंग सिस्टम जो शुरू हुआ, इसके मकसद को कोई आज तक समझ नहीं सका, न पढ़ा लिखा समझा, न कोई अनपढ़ समझा। बैंक जो कायम किया गया है, इसका मकसद ही यह है कि सूद को, इंटरेस्ट के निजाम को दुनिया भर में आम किया जाए। और इससे होता क्या है, गरीब और गरीब होता है, मालदार और मालदार होता है। इसका आखिर में रिजल्ट यह आएगा, गरीब और गरीब होगा, मालदार और मालदार होगा। इस बैंक की बुनियाद रखने वाले यहूदी थे। अब जितने मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं फलस्तीन के जालिम खिलाफ, यानी फलस्तीन पर जो हमला कर रहे हैं, वहां के मुसलमानों पर दुआएं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स इसराइल के हैं उन तमाम को अवॉइड करने, रद्द करने का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है कि जो प्रोडक्ट इसराइल से बने हुए आते हैं उनको न लिया जाए, न खरीदा जाए। याद रखें, ये जितने प्रोडक्ट्स है, ड्रिंक के सूरत में, चॉकलेट्स के सूरत में, बिस्किटों के, ये जितने भी है, इससे इसराइल को जो फायदा पहुंचता है वो 100 में से 5% फायदा उसका है। 5% फायदा इन तमाम प्रोडक्ट का है, और 95% जो फायदा इसराइल को मिलता है वो इंटरेस्ट के बैंकिंग सिस्टम से आता है। किसको रोकेंगे? 5 रुपए के बारे में तो हमने बहस कर ली, कि बहुत हुज्जत कर ली कि इनको 5 रुपए ना मिले, मगर 5 रुपए के बारे में हुज्जत करने वाले
90 पे 5 रुपए आराम से हर महीना उनको देने के लिए तैयार है। बैंकिंग सिस्टम उनके पास कोई धंधा नहीं था, इंतहाई बेसरो सामान। जो इंसान थे वो यहूदी थे, उनको कोई ठिकाना देने वाला नहीं था, तो उन्होंने सिस्टम ऐसा इजाद किया कि हम ना कोई काम करना पड़े, हमको ना कोई तिजारत करना पड़े, बल्कि हम बैठे बैठे ही लोगों के पास से और दुनिया भर के हर अतराफ और नाफ से, हर कोने से हम जो है पैसे जमा करेंगे, अपने अकाउंट में पैसे आते ही रहेंगे। उसके लिए उन्होंने बैंक का इजाद किया शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने करेंसी का इजाद किया। पहले जमाने में करेंसी नोट नहीं है हमारे पास, जितनों के पास नोट है समझिए कि हमारे जेब में वो नोट नहीं है, बल्कि किसी की रस्सी हमारे गले में गलावे की तरह है। जैसे ही वो नोट बंद हो जाए तो हम आन के आन में फकीर हो जाएंगे। इसकी मिसालें हमने देखी है। नोटबंदी होते कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं चलता तो नहीं चलता। पहले जमाने में सोना और चांदी के सिक्के होते थे, अगर उस पर जो निशान लगा हुआ है, उस हुकूमत का नाम जो लगा हुआ है, अगर हुकूमत बदल जाए, बादशाह बदल जाए, तब भी वो सिक्का, तब भी वो कॉइन सोने या चांदी का होने की वजह से वो बाजार में चलता, उसका काम हो सकता, उसको पिघलाकर दूसरा कोई और चीज बनाकर बेच सकते हैं, उसकी कीमतें बनने का इम्कान है। अब ये जो सिस्टम बना दिया कि ये जो करेंसी आ गई, हर जगह करेंसी आ गई। करेंसी का मतलब ये है हम चाहे तो ये पैसा है, अगर हम न चाहे तो ये पैसा नहीं हो सकता। जरा गौर से समझिए मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। हम सारे जितने बड़े बड़े मालदार हैं वो भी इस दौर में इन करेंसियों की वजह से, लोन सिस्टम, इंटरेस्ट के सिस्टम की वजह से गुलाम है हम यहूदी के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो। हर करेंसी का छोड़िए, अब ये जो उन्होंने शुरू किया कि लोगों के पैसों को हम हिफाजत करने का झांसा देंगे, और एक के पास से पैसे हिफाजत करने का उनको गारंटी देंगे, और दूसरे को वही पैसे लोन पर लेंगे, और इजाफा जो पैसे आएंगे वो हमारे जेब में जाएंगे। ये सिस्टम कैसा शुरू हुआ। अब फिर ये जो शुरू में मैं अर्ज किया था कि इस दौर में महंगाई, हर चीज की रेट जो हद से ज्यादा बढ़ रही है, हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब 2004 में 1 किलो बकरे का गोश्त जो है 100 रुपए था, अब 800 रुपए हो गया। उससे भी ज्यादा, उससे तो कम तो नहीं है, उतना हो गया। इतनी शरह, इतना इजाफा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, किस प्रोसेस के बैकग्राउंड में ये हुआ। अगर कोई ये कहे कि अब ये मुमकिन नहीं है जो कह रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि ये इंटरेस्ट का निजाम, सिस्टम खत्म करे। अब एक शख्स, कोई इदारा, कोई बड़ा मॉल खोलना शुरू किया, कैसे वो शख्स मॉल खोला, कोई बड़ा होटल खोलना चाहा, कोई बड़ा इदारा लगाना चाहा कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, किसी एक बड़े प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसने एक कंपनी को खरीद लिया, तो वो कहां से लेगा पैसा, वो 1 लाख, वो करोड़, 2-4 करोड़ कहीं से लेगा। अब वो आगे उसके प्रोडक्ट को आखिर में सेल करेगा, परचेस करेगा, तो वो बताइए ईमानदारी से वो परचेस में किन किन चीजों को शामिल करेगा। वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के तो पैसे रहेंगे, उसके साथ साथ वो जिस मकाम पर किराए पे आया है उसका भी वो कीमत में शामिल करेगा, और उसके साथ सबसे बड़ी कीमत क्या हो गई, वो जिस बैंक से लोन लिया है और जितने पैसे पे लोन लिया है उस सारे का प्रॉफिट वो अपने जेब से थोड़ी अदा करेगा, उसके जितने कस्टमर्स आएंगे उससे लेगा। 100 रुपए की चीज है, वो चीज की कीमत 100 रुपए है, तो ये जो वो 100 रुपए की चीज 150 रुपए क्यों हो गई, 140 रुपए क्यों हो गई, वो 40 रुपए उसको आगे लोन में भरना है। 100 रुपए की चीज है, उसको भी फायदा हासिल करना है। फायदा तो 10 रुपए का है, मगर 40 रुपए वो लोन पे बन रहा है। अब वो जितने बड़े मॉल्स आ गए, वो बड़े मॉल्स वाले क्या करते, थोड़ा सा कम करते। थोड़ा कम क्यों करते, उनका बहुत ज्यादा सामान आगे सेल होता। अब ये दीवानी और अनजानी नादान पब्लिक क्या करती, भाई इनके पास सस्ता है, किसके पास सस्ता है वहां जाकर लेने की हमारी आदत है, या नेट पे देख लिए किसके पास परचेस कम है, वहां गए, वहां से वो चीज ले लिए। जैसे तरकारियां लेते नहीं, हाँ फरीदू बाजार बिल्कुल इससे भी बेहतर है, सबके पास एक रेट रहता। ये हुकूमत ने इसका फायदा उठाया कि हर एक को इस तरह आजाद कर देंगे तो रेट अलग अलग हो जाएगा, कोई ज्यादा मालदार, कोई ज्यादा गरीब हो जाएगा।
इसलिए उसको महदूद कर दिया। महंगाई यहां से बढ़ रही है। अगर कोई शख्स अपनी मेहनत का जितना है उस पर कारोबार करेगा, अब ये बड़े बड़े मॉल्स में या दीगर जो कारोबार वाले हैं, ये जो चीज खरीदे हैं आम आदमी तो आसानी से खरीद सकता। एक मालदार आदमी 100 रुपए की चीज को 40 रुपए में खरीद रहा है, तो गरीब को भी 140 में ही खरीदना पड़ता है। दोनों यहां पर बराबर हो गए। मालदार भी 140 में खरीद रहा है, गरीब भी 140 में खरीद रहा है। और वो जो एक 40 रुपए इजाफा है वो ये बैंक को दे रहा है, और वो बैंक से होते हुए किसके जेब में जा रहा है? जितने जालिम है उनके जेब में जा रहा है, और जालिम ताकतवर हो रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे, अगर इंटरेस्ट का कारोबार नहीं छोड़ोगे, तो याद रहो, तैयार हो जाओ, मैं और मेरा रसूल तुमसे जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अल्लाह जंग क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम मेरे बंदों को सता रहे हो। सूद से बढ़कर कोई जुल्म रोए जमीन पर नहीं है। अब शरीयत में गुंजाइश है, जो शख्स मजबूर है, जिसकी हाजतें असलिया पूरी नहीं हो रही है, सिर्फ उनके लिए बैंक से इंटरेस्ट वाला लोन लेना जायज है। हाजत असलिया का मतलब जिसके बगैर इंसान की जिंदगी गुजरना मुश्किल है। जैसे घर, किसी के पास घर ही नहीं है। घर इंसान की जरूरियातों में से बुनियादी जरूरत है, तो घर नहीं है, जाती मकान बनाने के लिए बैंक से इंटरेस्ट का लोन ले सकता है। ये जायज का दर्जा है, जायज का दर्जा है, हुक्म नहीं है ये। अगर कोई ना लेना चाहे और भी बेहतर है। अब ये जो घर का हाउस लोनिंग है, उसके लिए भी हद है। भाई शरीयत ने अब इजाजत तो दे दी, मैं बैंक लोन के जरिए से इंटरेस्ट के पैसे से 4 मंजिल घर बनूंगा। अब उसको जो है ऊपर के 2-3 तो तुम्हें जरूरत ही नहीं थी, उतनी की जरूरत नहीं थी। अब वो क्या किए, वो किराए को दे दिया, वो किराए खाने लगे, फिर ये नाजायज हो गया। जिसके पास जाती मकान नहीं है, वो उतने ही मकान के हिस्से पर लोन ले सकता है जितनी उसको जरूरत है। उसमें हाई फाई होना, ऐसा होना, माहौल ऐसा चल रहा है, इस दौर के मॉडल के लिहाज से मुझे होना, अब इसमें जितना इजाफा करेगा वो सब के लिए वो गुनाहगार है। अब किसी को अब गाड़ी ले रहे हैं, 2 व्हीलर है, उस पर काम चल रहा है, 4 व्हीलर की जरूरत नहीं है, मगर बैंक ने उसको ऑफर कर दिया कि आप अगर लेंगे तो हम आपको लोन देने के लिए तैयार है। भाई लोन फ्री में घर बैठे आ रहा है, ले लिए। घर बैठे नहीं आ रहा है, वो आपको आपके लाइल्मी में, बल्कि आपको बताते हुए, एग्रीमेंट कराते हुए आपका पैसा वो लूटना चाहता है, और हमें मालूम भी नहीं, हम खुद अपने हाथों से अपने पैसे को लुटवा रहे हैं। ऐसा कोई बेवकूफ हो सकता है जो अपने ही पैसे को अपने ही इख्तियार से जालिम के हाथ में दे रहे हैं? इसमें शरीयत की इजाजत नहीं है। अगर कोई बेरोजगार है, उसी तरह जिसका कोई कारोबार नहीं है, घर का रोजगारी भी, बच्चों के हुकूक और उनके नान और नफके का इंतजाम करने के लिए भी बिल्कुल कोई कारोबार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स कोई कारोबार लगाने के लिए बैंक से लोन ले सकता। कितना कारोबार? उतना कारोबार जिससे घर चल सकता। माहाना 20-25 हजार उसके घर के गुजारे के लिए काफी है, तो 20 और 25 हजार तक के पैसे किस कारोबार से आते हैं, उतने ही कारोबार के लिए लोन लेना जायज है। उससे अलावा का लेगा तो ये सब पूरा उस पर गुनाह है और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर है। अब हमारे पास क्या है, एक तो अच्छा खासा हमारा कारोबार चलता ही रहता, उसमें तरक्की करने के लिए, तरक्की पर तरक्की करने के लिए और पैसे जमाने के लिए क्या कर दिया हम? भाई खाली तो बैठ के है, बैंक लोन दे रहा है। जॉब वाले हैं, उमूमन जॉब वालों को तो आसानी से मिल जाता लोन, और घर के डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, अच्छा मकान है, और उस पर मिल जाता। अब उस पर पैसे ले लिए, किसी और मकान पर प्लाट खरीद लेंगे, वहां घर बन लेंगे, और वहां पर जो किराए को किराए जाते हैं वो किराए लाकर हम बैंक में भरेंगे। अब वो किराए अब जो बढ़ गए, किराए कितने महंगे हैं। हमारे एक साहब थे दोस्त, अब उनके घर में पानी आ गया, वो घर तलाश करते करते पूरा विजयवाड़ा छान मार लिए। मामूली सा छोटा घर भी 15,000 20,000 के ऊपर है। ये 15 और 20,000 से ज्यादा महंगा किराए का घर क्यों हुआ? वो जो किराए पे दे रहा है वो तो 5-10 हजार तो उसके फायदे के हैं, उल्टा उसके अलावा 5 से 10 हजार मजीद उसको बैंक को बनना है,
और वो बैंक का वबाल उस गरीब के सर पे लाके डाल रहा है। वो जो किराए पर आया हुआ है उससे वसूल कर रहा है, ये जुल्म नहीं है? अब वो जो किराए पर घर बना कर रहा है उसका पहले से कारोबार है, उसको किराए खाने की जरूरत नहीं। ये बात समझ रहे हैं आप कि क्या हो रहा है? पहले से कारोबार है, फ्यूचर प्लानिंग हो रही है कि आगे चलने के बाद मैं अगर बैंक से लोन लेकर घर बन दूंगा तो वो घर बनने के बाद वो किराए लेकर जाकर मैं बैंक में बन दूंगा, वो बैंक का लोन खत्म होने के बाद मेरा घर तो मेरे लिए रह जाएगा, बच्चों को बाद में दे दूंगा, बच्चों के लिए काम आएगा। पहली बात यह है कि पहले ये मुसलमान अल्लाह से इतना बदअकीदा हो गया है कि रूए जमीन पर कोई इतना बदअकीदा नहीं है। पहले कल का ये मुसलमान सोचा क्यों है? इसका ईमान करीमा पढ़ते ही ये लाया गया है कि तेरा हाजत रवा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तेरा भी हाजत रवा है, तेरे बाप दादा का भी अल्लाह हाजत रवा था, तेरे बच्चों का भी अल्लाह हाजत रवा है। उसके इंतजाम के लिए मैंने जुल्म का सहारा लिया, लोगों पे जुल्म किया। इसकी नौबत क्या हुई? इसका नतीजा क्या निकला? औलाद ऐसी बन गई, किसी औलाद में अदब नहीं है, बच्चों में ना दीन का शऊर है, ना दीनदारी है, ना नमाज कैफियत है। इतनी बदतरीन नस्ल जो इस दौर में कहीं और नहीं है। इसकी वजह यह है हराम माल से हमने उनकी परवरिश की, और बड़े बड़े जो बिजनेस चला रहे हैं इसी तरह से लोन लेकर वो सारा सूद पे चल रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, अब दिल दहलाने वाली हदीस है, अगर दिल में ईमान की चिंगारी बाकी है। अज़िना सबऊन अबवाबन सबऊन बाबन, जिना के 70 दरवाजे हैं। दरवाजे का मतलब जिना की वजह से जो गुनाह होता है दुनियावी और उखरवी, इसके कितने किस्म हैं? 70 किस्म के गुनाह होते हैं। ये सूद और इंटरेस्ट का काम करने वाले को, पैसा लेने वाले को, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। फिर हुजूर फरमाते हैं, असगरुहा कल्लज़ी यनकिहु उम्महु, उसमें से अदना दर्जा 70 दरवाजों में से छोटे सा छोटा दरवाजा, उसका गुनाह यह है जैसे किसी ने अपनी मां से जिना किया हो। अगर हमारे दरमियान कोई शराबी आकर बैठ जाए, उसके साथ बैठेंगे हम? कोई चोर आ जाए, मालूम है कोई कातिल आ जाए, उसे कितना भागते हम। अगर बस के सीट में, बाजू के सीट में कोई शराब पीकर आ जाए, उसके पास स्मेल आने लगे, फौरन वो सीट छोड़कर ठहरना पसंद करेंगे। कुरान कह रहा है वो जो शराब पिया है उसका गुनाह उसके हद तक है, वो मां से जिना करने के बराबर नहीं है। मगर वो ये जो बैंक लोन के नाम पर जो इंटरेस्ट का पैसा जमा कर रहा है, खा रहा है, खिला रहा है, गवाह बन रहा है, इस पैसे को लेकर वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, किराए पर देना चाहता है, वो खाना चाहता है। ये शख्स उस शराबी से कितना बदतर है कि शराबी शराबी है मगर मां से बदकारी करने वाला नहीं है, मगर ये तो सूद पर कारोबार करने वाला, ये मां से जिना करने वाला है। और हुजूर ये फरमा रहे हैं उन 70 गुनाहों में से अदना मामूली गुनाह ये है, तो फिर बड़ा क्या होगा? क्या बयान कर सकेंगे? बड़ा क्या होगा? ये दुनिया के, मैं आखिरत के आजाबों के बारे में अर्ज नहीं कर रहा हूं, आखिरत में तो आजाब है। हुजूर पाक साहब मेराज में देखे कि एक शख्स ऐसा है, उसका पेट एक बड़े हाल की तरह है, इतना बड़ा पेट है, और उसके पेट में, उसका पेट ग्लास की तरह, उसके पेट में क्या है नजर आ रहा है? पेट में क्या है? बड़े बड़े अजदे और बिच्छू है, और अंदर से डंक मार रहे हैं। हुजूर ने पूछा कि या ऐ जिब्रील ये कौन है? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया, या रसूलल्लाह ये वो है जो इंटरेस्ट का माल, सूद का माल खाने वाले हैं। ये बिच्छू वगैरह पेट में अंदर क्यों है? अगर बाहर से तकलीफ देते तो इसको भागने का, हटने का, सरकने का मौका होता। वो अंदर से, पेट के अंदर जाकर वहां से डसने का मतलब क्या है? अब इसको उससे नजात की भी कोई इम्कान, कोई सूरत नहीं है। इतनी सख्त वईद आई है। और हमारे जो अकाबिर होते थे ऐसा डरते थे उससे। हजरत सईदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किसी एक जनाजे में गए थे, तो जनाजा ताखीर से था और लोग आने वाले थे, तो धूप बहुत सख्त थी। तो आप किसी शागिर्द ने कहा कि उस्ताद जी थोड़ा हम किसी साए में खड़े हो जाएंगे, यहां तो धूप बहुत ज्यादा है, सख्त है धूप, साए में लेकर जाएंगे। तो साए में लेकर गया शागिर्द,
तो देखा कि वो जो एक घर के दीवार बहुत लंबी है, तो दीवार का साया गिर रहा था, वो शागिर्द उस साये में अपने उस्ताद को ठहराना चाहता था। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने देखा तो फरमाया कि मैं इस साये में ठहर नहीं सकता। फरमाया क्यों, क्या बात है? कहा कि ये जो घर है, इस घर के मालिक ने मुझसे कर्जा लिया था, अगर मैं इसके दीवार के साये में खड़ूंगा तो इससे, इसके दीवार से मुझे फायदा मिलेगा। सरकार दो आलम फरमाया, जो शख्स किसी को कर्जा दे और उससे उस कर्जे से बढ़कर कुछ भी फायदा उठाए तो वो शख्स अपने मां से जिना करने के बराबर है। लिहाजा मैं धूप में जल जाऊंगा, आज ये धूप मुझे जहन्नम की आग की तरह नहीं जलाएगी। अगर यहां जलने से मैं अपने आप को हटाकर इस दीवार के साये में रखूंगा तो कल जहन्नम में मुझे जलना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा। अब ये बड़े बड़े लोगों की बात नहीं, छोटे छोटे लोग और घर की औरतें 2-4 पैसे जमा हो जाए, बाजू वाले को दे 500 रुपए के, भाई 1 महीने के बाद 550 ला कर दो, और ये समझ रहे कि भाई कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह से कोई चीज बेचकर हम फायदा लेते हैं, वैसे पैसा देकर उनकी, अब ये कह रहे हैं कि उसको हमदर्दी भी बता रहे हैं कि बेचारे की मदद कौन करेगा। भाई मदद कर रहे हो 500 रुपए देकर, फिर 50 रुपए एक्स्ट्रा लेकर उस पर जुल्म नहीं कर रहे। अब इसको जायज भी समझ रहे हैं। ये वही बात है जो कुफ्फार मुशरिकीन कहते थे। कुफ्फार कहते थे सरकार दो आलम जमाने में, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये जो कारोबार है सूद का, इंटरेस्ट का, ये भी एक आम कारोबार की तरह है। वो ये कर रहे थे, आज भी मुसलमान वही कर रहा है। आप किधर जाकर देख लीजिए, जितने ऊपर हमारे जितने लोग हैं जिन पर लोन पर कौन भी लेना है, अब फोन लेना है, आज बहुत आसान हो गया, गुनाह करना आसान हो गया, दरवाजे खुल गए, EMI पे ले लो। आपके पास 1000 रुपए भी है तो जाकर फोन ला ले सकते। अब हर महीना पहली तारीख आती ही परेशानी शुरू हुई नहीं हुई, वह बनने के पैसे हासिल नहीं हुए, कितने लोग भाग कर जा रहे हैं, परेशान है नहीं है माहाना। अब दरमियान में अब इनका दिवालिया, ये जो लोन्स लिए हैं कुछ भी नहीं होता समझ के, कोरोना का जब माहौल आया तो उस वक्त देखना था उनकी हालत क्या हो गई। अब तो कारोबार बंद हो गए मगर लोन बराबर बनना था उनको। अल्लाह ताला जो फरमा रहा है, अगर तुम इस बात को नहीं कबूल करोगे और ये मामला इस तरह के हराम काम को नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, तुम्हें जंग करना पड़ेगा। अल्लाह की जंग तीर और तलवार से नहीं है, बारूद से नहीं है, बमों से नहीं है, वो ये है कि तुम्हारे अंदर बेचैनी, हर तरह की महंगाई, जिंदगी गुजारना मुश्किल, और हर लम्हे लम्हे पर कोई ना कोई खतरनाक बीमारी। ये क्यों हो रहे हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला के जंग के असरात है जो बंदे से जंग कर रहा है। तो खुदारा रहम करे, हम किस मोड़ पर जा रहे हैं। पहली बात, अल्लाह जो दिया उस पर इक्तिफा करे। इंसान में ये हिर्स बहुत ज्यादा हो गई, और कमाओ, बिल्कुल कमाए। मैं जो बातें अर्ज कर रहा था कि बैंक से इंटरेस्ट वाला लोन लेना किस किस के लिए जायज है। जिसको हाजत असलिया है, यानी जिंदगी गुजारना मुश्किल है, ऐसी जरूरत है तो ऐसी जरूरत को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। जैसे घर, जाती मकान है, वो भी जरूरत की हद तक, दूसरा कारोबार नहीं है तो कारोबार के हद तक, इसके अलावा किसी भी सूरत में लेना जायज नहीं है। इसके अलावा कोई सूरत जायज नहीं है। क्या अच्छा होता था, सुबह से शाम तक मामूली से कोई एक ठेला लगा लेते, मौज कम से कम बेच लेते, मगर सुकून की जिंदगी, न मेरी गर्दन किसी के हाथ में, न किसी का मैं जिम्मेदार। ये लोग होते थे, मेहनत करते थे। अब मेहनत नहीं, सारी इंसानियत ये बैठे कि मैं बैठे बैठे मेरा पैसा उधर से इधर से हर तरफ से पैसा मेरे अकाउंट में आता रहे। ये वबाल हुआ। इससे क्या हुआ, ये बड़े बड़े जालिम सारे मजबूत हो गए, और ये आम इंसान, ये दरमियानी इंसान है, उस पर भी नहीं पड़ता ये असर। वो बैंक से लोन लेने वाला भी अच्छा है, देने वाला भी अच्छा है। ये जो खरीदार गया उस पर बेचारा ये मजलूम हो गया। ये शख्स तो लेकर, अब ये जो मॉल लगाया है, ये जो बड़ा कारोबार लगाया है, बिजनेस शुरू किया है, वो तो अपने जेब से नहीं दे रहा बैंक को लोन, और उसके पास जो कस्टमर आ रहा है वो उसका खून चूस रहा है बैंक को देने के लिए।
ये दोनों भी महफूज है। लिहाजा बैंक वालों को भी आफत नहीं है और लोन लेने वाले को भी आफत नहीं है, और बल्कि आफत इस पे इन लोगों पर है। हर चीज की कीमत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ने की वजह मैं आपको बिल्कुल आसान अंदाज समझा, अगर किसी को समझ में नहीं आया, इसमें डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं। ये पहले के जमाने में इतने बैंक सिस्टम नहीं थे, इसलिए लोगों पर इतना कर्जा और इतने बहुत बड़े मुसीबतें और महंगाई नहीं थी, पुरसुकून होते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त क्या था? उस वक्त में जो अतराफ अकनाफ जितने बड़े बड़े मुल्क होते थे, वहां पर भी यह सूद का निजाम होता था। आप जहां तारीख में, सीरत में सुनेंगे कि सहाबा इकराम को हुजूर किसी फौज के साथ किसी एक मुल्क को, कंट्री पर भेजा है, खत देकर के तुम अपनी हुकूमत को खत्म करो, हम हुकूमत करने के लिए आना चाहते हैं। इस तरह के वाकयात बिल्कुल है। ये बताकर गैर मुस्लिम ये कहना चाहती हैं कि इस्लाम जालिम मजहब है, नौज बिल्लाह, ये किसी दूसरे की सल्तनत को छीनना चाहता है। ये कभी गौर किया कि उस खत में हुजूर ने क्या लिखा उनको? क्यों उनको सल्तनत से डिसॉल्व करना चाहा हुजूर ने? हुजूर ने कहा कि पहले तुम लोगों पर जुल्म करना छोड़ो। वहां जितने भी बादशाह दुनिया में सर चढ़े हैं, तख्तों पर बैठे हैं, उनका मकसद और तख्त पर बैठने का जितना प्रोसेस है वो सारा इंटरेस्ट था, सूद था। मेरे इशारे को समझो। और हमेशा ऐसा ही होता है, जालिम जब भी इख्तिदार पर आता है तो नाजायज माल उसके पीछे होता है। सरकार दो आलम ने ऐलान किया, अगर नहीं करोगे तो हम जंग करेंगे तुमसे। हमारा मकसद यह है, वहां जाने के बाद वहां के लोगों कहते कि तुम जिसकी इबादत करते तो उसकी इबादत करो। किसी के मस्जिद, किसी के मंदिर को तोड़ा, ना किसी के गिरजा को तोड़ा, बल्कि इंसान को आजादी के साथ, खुशी के साथ, उसके अपने हैसियत को बरकरार रखते हुए सुकून की जिंदगी गुजारने की नेमत देना चाहते थे हुजूर। आज वो कहां है हमारे पास? ये इस्लाम था, हुजूर का ये काम था। मुसलमान आराम से रहने के लिए, सिर्फ हमारे अंदर ऐशो आराम बढ़ गया। मेरा भी घर भाई भाई, किसी का घर देखे भाई उसके घर में इतने अच्छे टेल्स है, इतने अच्छे झूमर है, डाइनिंग हॉल ऐसा है, किचन ऐसा है, मैं भी ऐसा बनाऊं। राजी क्यों नहीं हुए? अगर अच्छे घरों में रहना, अय्याशी करना और बड़े बड़े होटलों में जाकर मजेदार ग़िज़ाएं खाना, इस पर फख्र करना, ये फख्र की बात, ये खुशी की बात और ये बड़े होने की अलामत अगर है, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 दिन, 3-3 दिन फाके पर नहीं रहते थे। 2-2 3-3 दिन फाके रहकर बताए कि मेरी उम्मत, हराम माल से बचो, चाहे फाका कश होना पड़े तो हो जाओ, फाकों की जिंदगी बर्दाश्त कर लो। ये लोगों को दिखाने के लिए, अपना गर्रा दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरा घर इतना बड़ा है, इस पर मत जाओ, तुम जलील हो जाओगे। अल्लाह जिसको दे, इज्जतदार वो नहीं है जिसका घर बड़ा है, इज्जतदार वो नहीं है जिसकी गाड़ियां बड़ी हो, इज्जतदार वो नहीं है जिसके खाने मजेदार हो, इज्जतदार वो है जो आजाद हो हर एतबार से, उसका किरदार पाकीज़ा हो, उसकी जिंदगी में किसी पर वो बाकी ना हो। अचानक हमारी मौत आ जाए, क्या हाल होगा? मौत आ जाए, क्या हाल होगा? वही खर्जा, वही सूद अपने ऊपर रख के जाएंगे, क्या सूरत दिखाएंगे? लोन पे भी पैसे ले लिए, इंटरेस्ट पे कारोबार हो रहा है, और जो है उसी पैसे से लेकर कितने मालदार कहलाने वाले जाहिल लोग उम्रे पर भी जा रहे हैं। और अल्लाह ताला कह रहा है, तू मेरे से जंग करने के लिए तैयार हो जा, और वो अल्लाह के घर को जाकर बता रहा है कि मैं उम्रा करने आया। और वो अल्लाह ये भी कह रहा है कि मुझसे जंग करो, मेरे नबी भी तुमसे जंग करेंगे। और वहां से जाकर वो गुंबद खजरा के पास सलाम पेश करने भी जा रहा है। जंग का ऐलान हो रहा है, वो तो जंग पर आमदा है और ये सलाम पेश करने के लिए गए हैं। ऐसा उम्मती ना सरकार को पसंद है, ना ऐसा बंदा अल्लाह को पसंद है। दोस्तों, पाक जिंदगी बनाए। जब पाक जिंदगी बनाएंगे, बीमारियां खुद ब खुद, गैबी निजाम के बगैर नहीं हो सकता। जितने लोग हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जितने हैं, उनसे सिर्फ ये उनसे तकाजा है, रिक्वायरमेंट ये है कि वो बगैर किसी इंटरेस्ट के साथ कारोबार करने का तरीका बताए। ये इस्लाम का नजरिया है, इसमें इंसानियत की हर एक को अमन है, हर एक को अमन है। पहले आम दर्जे का जो गरीब आदमी है वो खुश रहेगा, उसको परेशानी नहीं होगी। बच्चों की शादियां भी करना है, जगह लोन लेगी, अब उसी से दावतें खिलाए। अब जबरदस्ती लोग दावतें देते,
दावतें देते जबरदस्ती। अब वो दावत का पूरा पैसा क्या है? बैंक से। नहीं हजरत, नहीं लेते, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो वो लड़के वाले नहीं सुनते, और वही मुसलमान है, ये मुसलमान है। अब वो लड़के वाला भी ये कह रहा है, लड़के के बाप भी, भाई आप जैसा भी करो, हम इतने लोगों को लेकर आएंगे, इतने लोगों को खिलाना ही पड़ेगा आपको। और ये बेचारा लड़की का बाप, गलती दोनों तरफ है, इसके पास कोई और चारा कार नहीं है, लिहाजा बैंक से लोन लिया बच्ची की शादी के लिए, और वो जितना खाना पका वो बैंक इंटरेस्ट से बना। अब वो नमाजी भी उसमें ही खा रहा है, हाजी भी, उमरा करने वाला भी। न इनकी नमाजें इसलिए इनके सर से ऊपर नहीं जा रही है, न इनकी दुआएं अल्लाह के अर्श को टकरा रही है, क्योंकि इनके लुक़मे के अंदर हराम मिल चुका है। अब फायदा नहीं हुआ, न इनकी नमाजें इनके काम की है, न इनकी दुआएं इनके काम की है। अब ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? पहली बात, जब बच्ची बालिग हुई या उसके शादी का मसला आया, क्या एक मर्तबा हमने अपने परवरदिगार से बोला, ऐ अल्लाह इस बच्ची को पैदा किसने किया, किसकी मखलूक है ये बेटी मेरी है, मगर इसका खालिक मैं नहीं हूं, खालिक तो तू है। इसके सर को, इसके आंख को, इसके हाथ पैर को, इसको तूने बनाया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तू मालिक इसका है, इसका हाजत रवा तू है। तूने वादा किया है कि सारी कायनात को मैं पालने वाला हूं, इसकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? अगर एक मर्तबा सर सजदे में रख के बोले होते कि ऐ परवरदिगार, पहली आयत में कह रहा है कि मैं आलमीन का परवरदिगार हूं, फिर क्यों इसकी तरबियत नहीं कर रहा है, फिर क्यों इसकी हाजत रवाई नहीं कर रहा है, इसके जोड़े का तू क्या बनाया, ला इसके कदमों में। पूछते कभी एक बार तो हुआ है तारीख में, आज भी हो रहा है, हमेशा से होगा। इस्लाम की तारीख की इब्तिदा यहीं से हुई है। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम ने उस पथरेली जमीन से अनमोल पानी को निकाल के बताया है कि अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले बंदे को अल्लाह ताला उसके कदमों से पानी निकाल के बताता है। अगर ये करता मुसलमान, पहले पूछते कि परवरदिगार ये तेरी मखलूक है, ये तेरी बांदी है, तेरे महबूब की गुलाम उम्मत में से है, इसके जोड़े का इंतजाम फरमा, हो जाता था। फिर अल्लाह ताला गैब से कैसा ऐसा करे तो होता, क्या नहीं होता था? फिर मुसलमान क्यों है? अल्लाह अगर नहीं सुनता, गैर सुनता है, तो जो सुनता उसी को महबूब बना लेना था। इस्लाम हम ये कह के लाए हैं कि हमारा पहला हाजत रवा अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। ये अकीदा दुरुस्त नहीं हुआ, इसीलिए दर दर के ठोकरे खाए और परेशान हाल। अब वो लोन फिरते फिरते उसके बाद ये बीमार, ये परेशान। अब ये लड़की जो इस पैसों से लेकर बने हुए जहेज को लेकर अपने घर गई, क्या वो खुश रह सकती? रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? वजह तो समझ में ही नहीं आती। क्या कि वाकया हुआ और रिश्ता टूट गया। वो वाकये तो दूसरे भी घर में हो रहे हैं। उस तरह के मामूली झगड़े तो दूसरे फैमिलीज में भी है। हर घर में झगड़ा होता, नहीं होने का सवाल नहीं, मगर झगड़े की वजह से शर का फैल जाना और नुकसान का शिकार होना, इसके पीछे किसी ना किसी हरामकारी का दखल होता ही है। ये इस्लाम का दावा है। अल्लाह से बरकत लेना नहीं चाहे, अब ऐसे लोगों क्यों दिया? ना उधर वो राजी, ना इधर। अब ये लड़की वाले बड़े जालिम हैं। अगर कोई हम मुफ्त में करके जाएंगे, तैयार नहीं होते। अच्छा, बच्चा क्या करता पूछो? और गवर्नमेंट का जॉब होना, गवर्नमेंट का नौकर होना, ये आजाद नहीं होना, पक्का जो नौकर है इसकी नौकरी हमेशा के लिए गुलाम हो जाना, ऐसा होगा तो उसको बच्ची दूंगा। ये बच्ची वाले बड़े जालिम है। मैं तो समझ रहा था ये जुल्म करने वाले सिर्फ लड़के वाले हैं, इन्हें भी बड़े, ये खतरनाक है। ये नहीं चाहते कि मामूली दीनदार हो, कुछ भी हो, वो नहीं चाहते। हमें बड़ा मालदार होना चाहिए, माल वाला होना चाहिए, ताकि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। माल से कोई खुश रहा, माल की वजह से। एक का नाम बताओ तारीख में। कुरान का दावा, कुरान कह रहा है मालदार को माल की वजह से इज्जत नहीं मिली। माल फितना है, हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अल माल। माल से फितने में तो पड़ेंगे मगर सुकून नहीं मिलेगा। सुकून सजदों में है, सुकून अल्लाह के नाम के लेने में है, सुकून अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाने के बारे में। एक बात तड़पते दिल के साथ उठाकर देखो, अल्लाह ताला दिल को कैसे पुरसुकून कर देगा। तो दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट की, सूद की वबा है, तबाही है, बहुत खतरनाक है। मैं इस पर कुछ अर्ज नहीं कर सका। जितना भी किया हूं वो शायद काफी होगा। हर तरफ गांव में, बस्तियों में, शहरों में हर तरफ फैल गया है। अपने आप को इससे पाक रखो। अल्लाह जो दिया बरकत के रास्ते से हासिल करो, अल्लाह ताला उसमें ऐसी तरक्की रखेगा
کہ ہمارے گمان سے باہر ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، اس طرح کے سود کی تباہیوں سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں یہ سکت نہیں ہے کہ تجھ سے لڑ سکے، تجھ سے جنگ آرا ہو سکے، اس تباہی سے، اس لعنت سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یہ واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔